आइए स्टार्ट कर लीजिए आप अपनी रिकॉर्डिंग, है ना मैडम? स्टार्ट कर दी क्या? स्टार्ट हो गई? ओके, सो नाउ आफ्टर back means after comeback of pandemic Omicron, today we are again going to discuss physiology of aging. हमारे जो रिलेटेड टॉपिक कवर हो गए थे एज यू नो, एज रिलेटेड चेंजेस, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कवर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो चुकी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, इम्यून सिस्टम हो चुका है. इज इट क्लियर? तो आज आप हेडिंग डालिए एज रिलेटेड चेंजेस इन मेटाबॉलिक एंड टेम्परेचर रिलेटेड, मेटाबॉलिक एंड टेम्परेचर रिलेटेड, metabolic and temperature related changes and balance problems. आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एज रिलेटेड फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग, एज रिलेटेड चेंजेस में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमारे कवर्ड हो चुके हैं. दिस इज द लास्ट वन, मेटाबॉलिक एंड टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस एंड बैलेंस प्रॉब्लम्स. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो एज रिलेटेड चेंजेस एज पर द, आपको हमने बताया कि एजिंग ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि जिसमें क्या है, डिटोरिएशन होता है, डिटोरिएशन टू एबिलिटी टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विच इज इरिवर्सिबल इनमेटेबल. ये तो बात हो गई. बहुत सारे फैक्टर देखने के बाद आज हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक एंड एज रिलेटेड एंड टेम्परेचर, मेटाबॉलिक, टेम्परेचर और बैलेंस. ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. After that it will be wind up. Now write down metabolic changes. पहला है metabolic changes. Metabolic changes, it is the important factor of changes. It is important factor of changes in energy metabolism, and it is also one of the common sign 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 of aging, one of the common sign of aging. Next slide से the BMR commonly decreases linearly. The BMR commonly decreases linearly with age. With age ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, जैसे एज का मतलब है जैसे प्यूबर्टी, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्यूबर्टी ऑब्लिक मेनोपॉज, MENOPAUSE, menopause, bracket close. Now next part, in metabolic changes the calories burn each day for basic vital function. Full stop.
The skeletal muscles consumes the largest part of energy in normal human body as metabolic activity. Next, the decrease in muscle mass rather than total body mass responsible for age related decrease in basal metabolic rate. The metabolic changes during age differ intra and inter individual variations in BMR. ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए बेसल मेटाबॉलिक रेट. नाउ नेक्स्ट अब एक हेडिंग डालिए टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस. नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस. बॉडी नेक्स्ट लाइन से लिखिए बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड बीपी ब्लड प्रेशर आर वाइटल साइन and all they changes with aging full stop. Fever is an important sign of illness in older people or sign of infection. Next line से normal body temperature does not change much with aging. Normal body temperature does not change much with aging, but at aging the amount of fat decreases below skin, makes it harder to stay warm. Full stop. Next line से the risk of hypothermia is widely considered to be greater
the risk of hypothermia is widely considered to be greater for older than younger persons. Due to reduced ability to maintain body temperature during cold exposure. Full stop. Next line says, as thermoregulatory responses to cold, the cutaneous vasoconstrictor response may be slower in aged than younger. Next लिखिए balance problem. फर्स्ट लिखिए सिम्टम्स ऑफ बैलेंस. डैश करके फील अनस्टडी, कॉमा, फील ऑफ फॉलिंग, कॉमा, फील ऑफ light-headed, comma, faint, faint, comma, blurred vision, comma, disorientation, comma, confusion of time, comma, place, comma, identity, etc. नेक्स्ट लिखिए अदर सिम्टम्स. अब नेक्स्ट डालिए अदर सिम्टम्स. डैश करके लिखिए नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, nausea, vomiting, diarrhea, changes in heart rate and BP, comma, fear, comma, anxiety, comma, panic, act long, which leads to fatigue, fatigue and depression. नेक्स्ट लिखिए बैलेंस प्रॉब्लम्स आर common to all age related individuals. Balance problems are common to all age related individuals as loss of control and maintaining body posture.
नेक्स्ट लिखिए, ऑर्गन ऑफ बैलेंस or the vestibular system inside the ear is responsible for balancing. Next लिखिए, vestibular rehabilitation. नेक्स्ट लाइन से, vestibular rehabilitation therapist can help and develop an individual treatment plan for balance problem, treatment plan for balance problem during aging. So अभी आपने देखा the age related metabolic changes. एक्चुअली जो मेटाबॉलिज्म होती है, दिस इज वाइटल एक्टिविटी है और मेटाबॉलिज्म सेल मेटाबॉलिक पूरा पार्ट है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी कंज्यूम होती है, बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो धीरे धीरे क्या होती है, एनर्जी कम होती चली जा रही है और इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्वाभाविक रूप से एज के साथ में चेंजेस हो जाएगी। तो इसमें आपने यही लिखा है, इट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर बीएमआर, बेसल बॉडी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड मेनोपॉजल स्टेज फॉर द फीमेल्स। तो जब एज रिलेटेड, एज प्यूबर्टी और मेनोपॉज में ये सिम्टम्स आते हैं और इसका बेसिक कंसर्न मेटाबॉलिक इसी से है, बस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। द एज रिलेटेड चेंजेस विद द बर्न्स ऑफ द कैलोरीज ईच डे फॉर वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन के लिए जितनी एनर्जी कम होती जाएगी, भाई जो एज रिलेटेड पीपल्स होते हैं, हार्ट वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। रीजन यही रहता है कि उनको प्रॉपर एनर्जी ही नहीं मिलती उस काम करने के लिए। और उसके लिए आपको जब हम उस समय मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ा रहे थे, तो टोटल मास और टोटल वेट वो कम होता चला जा रहा है। तो ये एक तरीके से रिलेटेड है उन बाकी फैक्टर से, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है। सो ये है स्केलेटल। अच्छा, अब इसमें क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा हमारी दो मसल्स हैं बॉडी में, एक है स्केलेटल मसल्स, दूसरी है स्मूथ मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, विच वन इज द वॉलंटियर? ठीक है, मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सके, जो आपके, और स्केलेटल मींस स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि जो बोन्स से अटैच्ड मसल्स है वो सब ये है। स्मूथ मसल्स ये है सब जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, इन सब में ये स्मूथ मसल्स। तो बेसिकली जो हमारी डे टू डे लाइफ चल रही है, तो वो चलना फिरना और भी डिफरेंट एक्टिविटी है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो स्केलेटल मसल्स यूज कर रही है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो स्मूथ मसल से चल रही वो फिक्स्ड है, वही हार्ट रेट चलना है, वही किडनी फिल्ट्रेशन होना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ये जितना फास्ट होगा उतना ही ये भी फास्ट हो जाएगा। तो ये स्केलेटल मसल्स इसमें लिखा है आपने, स्केलेटल मसल इज द व्हिच कंज्यूम्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मसल मास डिक्रीज हो जाता है, मसल मास डिक्रीज हुआ और डिक्रीज इन मसल मास, टोटल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एज रिलेटेड डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। ये की पॉइंट है, इसका याद रखिएगा। मेटाबॉलिक डिक्रीज क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे कि स्केलेटल मास कम हो गया है, इस वजह से मेटाबॉलिक डिक्रीज हो गया। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी जो पर डे एनर्जी कैलोरी बर्न हो रही है वो फैक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ये मत बता देना कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शंस है, तो जस्ट आप ये बताएंगे कि एनर्जी कंज्यूम से रिलेटेड है। और क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है
डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। एक तो बॉडी इंटर से है, मतलब इंटरनल फैक्टर्स हैं, दूसरा है इंट्रा, अलग अलग जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो इसमें ये सब बात आ गई। बेसिकली इसमें है क्या कि ये एज रिलेटेड वही है हमारे, बाकी इसमें एक और हम आपको बताते हैं। डिक्रीज ऑफ एनर्जी इंटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट आल्सो डिक्रीजेस। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक होते हैं, इसेंशियल होते हैं और एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो है। तो इसको आप बताइए विच इज इसेंशियल एंड विच इज एसेंशियल। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये किसी जमाने में पीएमटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था। तो ये जो बेसिकली ये 5 होते हैं जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6। तो ये है मॉलिब्डेनम है, बोरान है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सब इसी के हिस्सा होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कई बार हम लोग इनको ट्रीटमेंट में देते हैं, तो वही लिखा है डिक्रीज इनटेक द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आल्सो डिक्रीजेस इफ एनर्जी इनटेक ऑन अदर हैंड एक्सीड इंडिविजुअल एनर्जी नीड्स। Fat accumulates in the body. Body fat tends to accumulate in the abdomen of the elderly. Fat tissue in the abdominal cavity is connected directly with the liver through portal vein. ठीक बात है। Accumulation of abdominal fat causes disturbance in glucose and lipid metabolism. It is shown that glucose tolerance decreases with age. Although the age contributes independently to the deterioration in glucose tolerance, decrease in glucose tolerance may be partially prevented through the changes of lifestyle. Energy metabolism is essential for the physiological function. It may also be possible to delay the aging process of various physiological functions by changes in dietary habit, स्टॉपिंग स्मोकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। वही सब बात आगे जाकर के ओवरऑल। सो इसका ये जो एक टाइम पे क्या होता था कि आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी हम मालिश करते हैं। तो रीजन बस यही होता है। इसमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अगर हमें मेंटेन करना होगा, मोस्टली क्या होता है जो एज्ड पीपल होते हैं उसमें वो सिस्टम खत्म हो जाता है। स्केलेटल मसल्स पे कौन काम करता है? बहुत जो फिजियोथेरेपिस्ट ये रोल करते हैं। वही एक लास्ट में एक लाइन लिखी है, फिजियोथेरेपिस्ट में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दिस पर्पज। दूसरी चीज आपको फिर और हमने बताया है क्या है, तो उसके बाद है टेम्परेचर रिलेटेड। टेम्परेचर क्या होता है कि एज के साथ में जो टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, फिर वही बात आ जाएगी कि टोटल बॉडी मास और बॉडी वेट कम हो रहा है। एडिपोज टिश्यूज अपर लेयर जैसे स्किन में आपने देखा एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, और नीचे क्यूटेनियस बॉडीज जो नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं। फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज स्किन में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। तो एडिपोज भी कम होता चला जा रहा है, तो वो एज ए थर्मोरेगुलेटर काम करता है। तो एज पीपल में क्या होता है, जो ये टेम्परेचर को वो उनमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी चीज क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। कई बार एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस भी होती है, तो उस समय भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, और फीवर तो एक फैक्टर नहीं है। तो ये टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस इसमें लिखा है। तो ये जो हाइपोथर्मिया है स्पेशली, इनका जो टेम्परेचर कमी रहता है, हाइपोथर्मिया इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर फॉर ओल्डर देन यंगर पर्सन। टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसीलिए इनको ओवर क्लॉथिंग्स है या ओवर प्रोटेक्शन देते हैं टेम्परेचर से कंट्रोल करने के लिए। सो थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज में यही लिखा है, आपने देखिए लिखा है क्यूटेनियस वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिस्पॉन्सेज में स्लोअर देन यूजुअल। तो रीजन यही होता है कि उनके जब एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं और वो कम हो जाते हैं, तो ये एज के साथ में फिर वही रीजन वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे, उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। बेसिकली इसमें है क्या, आप चाहे तो थोड़ी देर सुन सकते हैं।
टेम्परेचर ऑफ ओल्डर मैन एंड वुमेन इज लोअर देन द यंगर पीपल, ठीक है। दे टॉलरेट द थर्मल extremes is more limited. The regulation of body temperature does not depend on single organ, ठीक है, but rather involves almost all the system of the body system, not exclusively dedicated to thermoregulatory functions such as the cardiovascular and respiratory system, since these deteriorate naturally with advancing age. The decrement in their functions resonate throughout all the body processes, including those that control body temperature. So इसका जो बेसिकली इसका जो कॉज है वो आप वहीं पे पहुंच सकते हैं कि स्किन पे बॉडी मास कम हो रहा है तो ये टेम्परेचर। अब आइए बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। बैलेंस की अगर हम बात करें तो बैलेंस में आपको हमने बताया है कि सिम्टम्स ऑफ बैलेंस इसमें है, यही सबसे ज्यादा है। आप ज्यादातर अगर फिजियोथेरेपी पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनमें ये सबसे ज्यादा आता है। वो ठीक है, उनके साथ में मान लीजिए किसी के साथ एडी है या पीडी है, अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, तो वो ठीक है। उसके अलावा ये बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है। अब बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आपको ये बताना हो कि व्हाट आर द सिम्टम्स, फील अनस्टेडी, ठीक है, फील फॉलिंग, यही सब सिम्टम्स हैं। फील ऑफ लाइटेड हेड, बिल्कुल हल्का, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फेंट, ब्लड विजन, धुंधला दिखने लगे, वो वाला धुंधला नहीं है, कैटरेक्ट वाला धुंधला। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, समझ रहे हैं, ऑप्टिक नर्व, ये कहां से बात आ गई, ये ठीक है, सैरी, सैरी, मेडुला, ठीक है, दिस इज व्हाट स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें कौन सी ऐसी बात, पता नहीं क्या सोच रहा हूं ठीक है। तो अब ये अगर इसको हम स्केलेटन के रूप में देखें, अगर इफ सपोज वी आर सीइंग दैट इट इज अ स्केलेटन सिस्टम, जब हम लोग ह्यूमन स्केल अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरह से वो डरने वाला एक वो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। सो हैव यू रिमेंबर्ड और नॉट, कुछ याद आ रहा है ऐसे? अरे अगर इसमें ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, हमने क्या हटा दिया, वेरी गुड, तो ये हमने मैंडिबल हटा दिया, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाला जो पार्ट बचा है, और मैंडिबल ये जाइगोमेट्रिक आर्च है, इसी में मैंडिबल फंसा रहता है, मसल से काम करता है। इज इट क्लियर? आपने मैंडिबल को हटा दिया। अब दिस इज व्हाट, दिस इज क्रेनियम। अब ये बचा क्रेनियम। जब मैंडिबल और क्रेनियम को जब हम दोनों को मिला देते हैं तब ये बनता है स्कल। बेसिक डिफरेंस समझना। अगर आपने मैंडिबल हटा दिया सो नाउ इट इज नॉट स्कल, इट इज द क्रेनियम। और यहीं से 12 पेयर ऑफ नर्व्स, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, आपने क्रेनियल नर्व्स सुना होगा, वो निकलती है, ऑल ऑफ मतलब बहुत सारी वेगस वेगस ये सब निकलती है, राइट। इसी से एक है ऑप्टिक नर्व। इज इट क्लियर? ऑप्टिक नर्व, तो उसमें आपने जो लिखा है ब्लड विजन, तो ब्लड विजन का मतलब इससे नहीं है, यहां का ब्लड विजन इससे नहीं है कि ये आप मतलब एक चीज ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये मान लीजिए आई है, ठीक है, तो ये लेंसेज है, लेंस, और ये आपका दिस इज रेटिना, रेटिना हो गया जाके। तो एक तो ये है कि यहां से क्लियर इमेज ना आना, ये कट्रैक्ट हो गया, ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई जाके। अब ये क्या है कि यहां से ये जो ऑप्टिक नर्व जा रही है, इसके बीच में ये जो ब्रेन के पार्ट हैं, कई बार आपने देखा होगा जो स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं उनका आपने सीटी स्कैन देखा होगा, तो ऐसे फ्लूइड फील्ड होता है काफी जगह, मतलब इस तरह से फ्लूइड भरा रहता है उसमें। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है कि ये जो ऑप्टिक नर्व जा रही है या जो क्रेनियल नर्व्स हैं,
क्रेनियल नर्व्स कई बार क्या होता है कि इस समय जैसे अभी लास्ट मतलब 2 मंथ से आपने देखा होगा कि इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं, कार्डियक स्ट्रोक वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, बीपी शूट आउट हुआ और जैसे ही गया यहाँ पे सब ये स्मूथ मसल्स है और तो सबसे पहले यही पे हेमरेज स्टार्ट होता है, तो ब्रेन हेमरेज सबसे ज्यादा यहाँ होता है। इससे क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया प्रेशर, उस प्रेशर से क्या होता है कि ये जो नर्व्स हैं ये सबसाइड हो जाते हैं, तो उनका मसल कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता है और विजन भी नहीं आ पाता है। अगर उनका सीटी स्कैन देखेंगे सो इसमें आपने बैलेंसिंग एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड और फिजियोथेरेपी के एंगल से, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आपने क्या लिखा है, फॉलिंग लाइट हेडेड, फेंट, ब्लड विजन, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन। डिसओरिएंटेशन का मतलब यही है, अब इसमें आप देखेंगे ऑप्टिक है, ऑक्लोमोटर है, ट्राइजेमिनल है, वेगस है, ये एब्ड्यूसेंस है, ये अगर आप टोटल 12 के नाम लिखेंगे तो इसको याद कर लीजिए, हो सकता है कभी काम आए। सो ये दीज आर द एज के साथ में ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो मैंने आपको लिखा है। नाउ द अदर सिम्टम्स क्या है, नॉजिया। अब क्या है नॉजिया के लिए, CTZ सेंटर। भाई नॉजिया कैसे होता है, यही तो होता है, CTZ सेंटर स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेशन ऑफ CTZ सेंटर। दिस इज द मेन सेंटर जिसकी वजह से नॉजिया या वोमिटिंग होती है। ये याद रखना, सुपर हिट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है कीमो ट्रिगर जोन, कीमो ट्रिगर जोन। और ये एक्यूमुलेशन कैसे हो सकता है, अब देखो क्या होता है कि जैसे जो ईयर है, ईयर वाला पार्ट है, और ईयर से जब आप अंदर बढ़ेंगे ये आउटर ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, इसके बाद में ये टिम्पैनम, जिसको आप ईयर ड्रम भी कहते हैं, ईयर ड्रम या इसी को टिम्पैनम, ठीक है। इसके बाद में 3 छोटी छोटी बोन, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, एक्सटर्नल ईयर, दिस इज ईयर पूरा हो गया, एक्सटर्नल ईयर, दिस इज मिडिल ईयर, और फिर इसी के साथ सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इज इट क्लियर? और यहीं से फ्लूइड फील्ड होता है, और ये यहां से नर्व्स जो कनेक्टेड होती है वो कीमो ट्रिगर जोन को भी इन्फ्लुएंस करती है, और प्लस ये जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं फ्लूइड में, ये तो बहुत सुपर हिट, सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। तो ये वाला जो सिस्टम है, और यहीं से फिर बाद में ये नर्व्स चली जाती है जो कि हियरिंग के लिए है रिस्पॉन्सिबल। तो ये पूरी जो स्टोरी है कीमो ट्रिगर जोन से, ये अगर एक्टिवेट हो गया, अब अलग अलग तरीके से होता है एक्टिवेशन इसका। एजिंग में क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आपको पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया था, तो कई बार उसकी वजह से CTZ स्टिमुलेशन हो जाता है। माउंटेन सिकनेस में भी यही है, जैसे आप पहाड़ों पर जाएं बस के द्वारा, तो उसमें जब आप कंटिन्यूअस आप करते हैं तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो फ्लूइड है ये वाइब्रेट होता है, और ये रिस्पॉन्सेस तुरंत CTZ पे वोमिट करता है पेशेंट। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपने पहला लिखा है अदर फैक्टर में नॉजिया हो गया, जी मिसलाना, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, चेंजेस इन हार्ट रेट, बीपी, फियर भी एक अदर सिम्टम्स है इसका, दिस इज बैलेंस का, एंजाइटी भी है, और वो पैनिक होता है पेशेंट, और ये जब बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो पेशेंट क्या हो जाता है, वो उसको डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे उसको
बहुत ये मतलब ये वो उस टाइम की बात है जब इसको बहुत थका से फटीग, डिप्रेशन ये सब हो जाता है। इसके साथ में और आपको हमने क्या बताया है कि ऑर्गन ऑफ बैलेंस वेस्टिबुलर सिस्टम इनसाइड द इनर ईयर आपको बता दिया है, दिस इज। और वेस्टिबुलर इस हाँ यही तो नर्व थी, वेस्टिबुलर नर्व थी, ये वेस्टिबुलर ऑर्गन ही तो कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे ईयर की तो उसमें देखेंगे यही है वेस्टिबुलर ऑर्गन, बल्कि इसी को कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट्स। बेसिकली ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉक्लियर, ये टिम्पैना हो गया, जाके छोटी बोन्स हो गई, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं तो यहीं पे आपने सुना होगा कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगते हैं। ये जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से पेशेंट आते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता है। हालांकि कॉमन ऐसा होता है कि जो बोल नहीं पाते वो सुन भी नहीं पाते, लेकिन क्या है कि जो ना सुनने वाले हैं तो यहीं से वेस्टिबुलर ये नर्व तो जा ही रही है, वेस्टिबुलर नर्व्स, और ये कॉक्लियर पूरा ये कॉक्लियर बोन होती है यहाँ पे। अगर आप इसका पूरा वो देखेंगे तो हालांकि ये जो स्कल वाला पार्ट होगा तो अब यहाँ पे एक छोटा सा मेस्ट्रॉइड बोन होती है, एक छोटी सी, अगर स्कल देखेंगे उसी के बेस पे आप पहचान पाएंगे कि ये मेल का है कि फीमेल का है। वो तो खैर एक अलग एनाटॉमिकल पार्ट हो गया जाके, आपको तो इससे जो फिजियोलॉजिकल पार्ट से ज्यादा मतलब है। तो ऑर्गन ऑफ बैलेंस दिस इज। तो वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन, यस, ये जो बैलेंसिंग को अगर आपको इंप्रूव करना है तो रिहेबिलिटेशन का मतलब है फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट, या इसी को आप ये कह सकते हैं कि वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन। तो दोनों एक ही ऑलमोस्ट बातें हो गई जाकर के वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन। सो दिस इज द which is directly related to CTZ center, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, नोजिया, वोमिटिंग, और यहाँ से ये सारे फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर बैलेंसिंग। नाउ नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड एक हम रिकैप करते हैं। आपको अभी तक हम लोगों ने जो टोटल पढ़ लिया है, जैसे एज फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, क्या इतने दिनों में अभी है भी यह सब साफ हो गया है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपको क्या है, स्टेटस क्या है इस समय, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बताइए फर्स्ट, व्हाट इज एपोप्टोसिस? सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। व्हाट इज प्रोजेनिटर्स? So there are different progenitors for B cells, T cells जो इनहिबिट हो जाते हैं जब आपने इम्यून सिस्टम का चेंजेस बताए थे। प्रोजेनिटर्स वर्ड से थोड़ा सा मतलब थिंक द वर्ड प्रोजेनिटर्स, प्रो और जेनिटर्स। So they help in generation। हाँ बस सिस्टम बस ऐसे ही ऐसे, ठीक है, राइट। आप बताइए व्हाट इज लिम्फोसाइट्स? Lymphocytes are which the white blood cells which act as what is types of lymphocytes? B lymphocytes and T lymphocytes. What is difference between B and T? Maturation जहाँ पे होता है तो bone marrow में maturation is what is immunity? So immunity is what guards us from the outside type of immunity? So innate immunity, inbuilt immunity, acquired immunity. What is active immunity? So active immunity is what is being adapted. So like example एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की है, कौन कौन सी है? one is natural and the other is vaccinated. पैसिव मतलब Passive is from borrowed, any source borrowed. What is antibodies? Antibodies which are generated within the in response of antigen scavenger जो बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। They are kind of protein। बस ये है, मतलब एंटीबॉडी। सबसे पहले ये बताइए, वो ठीक है, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया, ऐसे आखिर है क्या चीज वो? ये जैसे कोविड के अगेंस्ट में मान लो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप हुई, तो आखिर क्या है एंटीबॉडीज? व्हाट इज? तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, व्हाट इज ल्यूकोसाइट्स? So leukocytes are the kind of cells, WBCs. Okay. What is senile hyperinflation? Senile hyperinflation. आए पकड़ में सबके सब। किसी ने काफी खोल के नहीं देखी। सिनाइल हाइपर इन्फ्लेशन, जब हम उस समय जब आपको हम बता रहे थे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है।
राइट तो वहां पे हमने टाइडल वॉल्यूम और ये सारी चीजें बता रहे थे। तो एयर ट्रैपिंग एक पर्टिकुलर एक एरिया में वो एयर जैसे जो बीच में वाला जो वाइटल कैपेसिटी तो वो दैट इज द हाइपरट्रॉफी। आप बताइए व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? इधर Hypertrophy is the increase in the muscle mass. वही कैसे? Overwork of the muscles will lead to result in like physiological hypertrophy. इम्यूनोग्लोबुलिन्स Immunoglobulin, sir, IgA, IgG. ओके These are व्हाट इज हाइपोक्सिया? Hypoxia is the reduction in amount of oxygen at the level of the tissue. व्हाट इज एफवीसी? forced vital capacity. वेरी गुड। व्हाट इज मायोकार्डियम? So myocardium is the layer of the heart. लेयर ऑफ द हार्ट? It is the like we have 3 layers of the heart, na? Endocardium. तो मसल लेयर बोलो। हाँ, muscle layer. इट्स नॉट लेयर, मसल लेयर। Muscle layer. व्हाट इज एरिथमिया? Arrhythmia, sir, A rhythm of the heart. PQRST PQRST. Yes. ठीक है एक ही बात है ना। व्हाट इज एज रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्लिनिकल प्रॉब्लम्स? It can be angina, there can be myocardial insufficiency, which can lead to MIs. Then we can have different kind of arrhythmias. It can What lead is to CAD? CIA. Coronary artery disease. वेरी गुड। व्हाट इज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन? So progressive degeneration is that happens because of the age-related changes in neurological system. So there Very is good. decrease in the levels of एज रिलेटेड ब्रेन डिसऑर्डर? Sir, Alzheimer's, Parkinson disease, and then we have hemorrhages. और आप बताइए। different kinds of balance problems. डिमेंशिया नहीं वो तो ठीक है, इसको मिलाइए नहीं। डोंट गेट मींस अपना आंसर हाँ कुछ दे दिया। एज रिलेटेड प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। डिमेंशिया है, एडी है, पीडी है, ये तो सब आपने बता दिया। टीआईए, सीजर है, एपिलेप्सी, सीजर आते हैं ओल्ड पेशेंट्स में। और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये भी आते हैं। तो कुछ चीजें याद रखिए। व्हाट इज हाइपोक्सिया? Sir, inavailability of oxygen. to the व्हाट इज tissues. हाइपोक्सिया? So it is the decrease in oxygen content at the level of the tissue. इसको देखना। So PaO2 decrease हो जाता है and at the level of व्हाट इज न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स? Neurogenerative disorders, sir, which are basically due to the involvement of brain or neurological components within the body. एग्जांपल ऑफ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स? so Alzheimer's disease, एडीपीडी Parkinson's disease. वही है, दोनों है ना? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ओके। दिस इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है? डिक्लाइन या कॉग्निटिव डिक्लाइन या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है? So dementia it will lead to further. हाँ, मतलब ये है डोपामिन और सेरोटोनिन जो रिलीज हो रहे हैं। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली उसके एज रिलेटेड उसके साथ में। आप बताओ, ये तो सब बहुत अच्छा आंसर दे रही है। एंटी एजिंग थेरेपीज कौन कौन सी है? So we can have exercise, we can have different growth hormones can be given. Then dietary. जो हार्मोनल थेरेपी है वन, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी है। तो हार्मोनल थेरेपी में कौन से हार्मोन्स हैं? Sir, hormonal therapy में आपने बताया था एक आप बताओ। Growth hormone is there. Then we have certain female hormones. सर्टेन नहीं है, साइंस में सर्टेन नहीं चलता है। मिलेटोनिन है, DHEA, एस्ट्रोजन है ना? DHEA। और एंटीऑक्सीडेंट हाँ, विटामिन्स वगैरह हैं। सो दिस इज, आप इसको कहने का मतलब ये है कि अब ये हमारा सब पूरा खत्म हो गया है। सो यू हैव टू गो थ्रू इट। और इसमें आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लीजिए आप अपने हिसाब से, एक एक दो दो लाइनों में। तो मीन्स डेली आप थोड़ा सा इसको आप पढ़ेंगे तो इट विल बी आपके लिए यूजफुल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस टुडेज क्लास। ठीक है, थैंक यू। अब इसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग।